इको साइड से दोवां साइडों से कटने ने। कड्डो कड्डो फिर। लो जी ये रात की तैयारी हो रही है। क्या बात है जी। और हुणे उड़ावांगे फिर भी दिखाने। जी उस्ताद जी हुण असीं जरा ना तफसीलन पूछ लेने तुहानूं। उस्ताद जी पल्ला खोलो पहले ते इत्थे ही असीं करने हुण साई दा दसी जाओ कि जिहड़ी तुसीं अगे गल कर रहे सी ना वो जरा हुण सानूं तफसीलन दा सब देखण वाले दसो। तीलियां दा कलर देख रहे जी? जी जी पीले कलर दी है बिल्कुल। इहदे तो भी ज़्यादा पीलियां होंदियां। हाँ बिल्कुल इंज ही है। पीलियां जिहड़ियां ना वो माशाल्लाह बहुत चंगियां। ए परियां जी ए परियां ए जिन्नियां लंबियां होणगियां ना उन्ना कंट्रोल करनगियां परां नूं। ठीक है फिर उस तो बाद ए पट्टी है। सर जी इस साइड दे कुंदे दी दसो। ए मेरे वाली साइड दे ए देखो ए मेरियां 3 ਉਂਗਲਾਂ किन्नियां वड्डियां। बिल्कुल इंज ही है। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। लो जी बहुत आसानी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 10ਵਾਂ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨੀ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ ਦੱਸੇਗੀ। ਨਸਲ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕੱਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਉੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਸੀ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹੀ ਸੀ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਟ ਗੁਲਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹੀ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰ 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਸਾਜੀ ਧੂਮ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੀ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਧੂਮ ਸਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਫਾ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਘਰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਜੀ ਖੋਲਣਾ ਜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, 4 ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 4 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਜੀ ਦਿਖਾਓ, ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰ ਪਹਿਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ 3 6 ਤੇ 4 10। ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰ ਦੇਖੋ ਬਗਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਅੱਖ ਦੀ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਇਹ 4 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ। ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪਾ, ਇੱਥੇ? ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 9ਵੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 10 ਹਿਟਲਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਟਲਰ। ਸਾਜੀ ਪਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਜੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ? ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈ। ਥੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜ ਤੇ ਹੱਡੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਅੱਗੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਜੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਜੀ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰੀ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ 8 ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈਗਾ। ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਪਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਗਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਨੇ ਆ ਬਗਲ ਲਈ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਬਗਲ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਪਰ, ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਜੀ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਬਗਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਥੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦੁਬਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜੀ, ਤਰਫੋਂ। ਜੀ। ਲਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਪਰੇ ਹੀ? ਲਾਪਰਿਆ ਹੀ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਡਾਨੇ ਸਾਂ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨੇ 4 ਤਵਾਰ ਇਹਨੂੰ 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਸਾਜੀ ਦਾ ਪਰ, ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਆਪ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਆਪ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜ਼ੀਰਾ ਦਬਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦਬਾਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ।
ਸਰ ਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੁੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ जुड़े हुए कबूतर ने। सर जी पर दोबारा दिखाओ जरा और स्टे करके रखना जरा। सर जी खोलो जरा इनका पर खोलो। मैं सर जी हुण इहदी असीं एक गल पुछ लैंदे आ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਲਈ ਸਰ ਜੀ ਐਸੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਡੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟੈਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਥਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਖਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਲੇ ਪਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੀਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਈ ਪੁੱਤਰ और टैडी तो जी। नाज़िम भाई ये जो हमारा कबूतर है ना, अस्सू वाला पहले स्काउट दिखा दिया आपने, अब ये जो है वाले जो कबूतर की हमारी बाजियाँ उड़ी थी उसमें ये हमारा मेन कबूतर हिटलर ये उड़ता रहा। ये बड़ा हिटलर है, वो जो पहले आपको दिखाया वो छोटा हिटलर था। अच्छा दो है। ये जो बड़ा वाला जो हिटलर है ये है जेठ की बाजियाँ। ये भी हमारे पास 10 साल से कबूतर है, तो ये 10 साल से हमारे पास उड़ रहा है। क्या बात ये वाला कबूतर हो गया, इसके साथ ये किंगरी वाला कबूतर हो गया। और ये जेठ के अंदर जब कोई कबूतर नहीं बैठ रहा होता था तो ये हमारा फ्रांसी कबूतर है। फ्रांसी कबूतर दिखाओ जी। लो जी, ये हमने इसका नाम फ्रांसी रखा हुआ है, बाकी पता नहीं इसको क्या कहते हैं अब अपनी ज़ुबान में। लेकिन जेठ के अंदर ये 5, साढ़े 5, 6, 7 बजे तक ये हमारे पास बैठा हुआ है। और ये जो तीनों कबूतर हैं, इन तीनों कबूतरों ने हमें 2 मोटरसाइकिलें इकट्ठी भी जिताई हुई हैं, और उसके अलावा बेशुमार इनामात इन कबूतरों तीनों ने जीते हुए हैं। क्या बात है। नाज़िम भाई बैठे आप शौक करवाएं तो आपको पता भी है कौन कौन सा परिंदा उड़ता रहता है, आपसे पूछते भी रहेंगे। लें जी, ये पहले कौन सा परिंदा है इसका भी बता दें। पहला परिंदा है जी, ये एक बच्चा था हमारे पास आया था, और इसको हमारे पास जब से हमने छत बनाई हुई है 10 साल हो गए हैं तकरीबन। ये 10 साल से हमारे पास उड़ रहा है और अभी तक स्टिल उड़ रहा है ये कबूतर। क्या बात है, 10 साल से ये परिंदा उड़ रहा है। 10 साल से ये परिंदा उड़ रहा है। नाज़िम भाई थोड़ा सा परिंदा नीचे करें, हाँ ये सही है। और हमने जब 2 मोटरसाइकिलें जीती हैं तो उस वक्त ये साढ़े 5 बजे ये कबूतर जो है ना बैठा, उस वक्त ये हमारे पास ही बैठे थे। ये तीनों इकट्ठे बैठे थे 5:30 बजे ना, जो तीनों आपको मैं दिखाने लगा हूँ। क्या बात है। और 2 मोटरसाइकिलें और उसके अलावा बेशुमार टूर्नामेंट के अंदर ये कबूतर जो है इसने हमें जिताया हुआ है। और ये इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है ना इस कबूतर की, ये वफादार बहुत है। ये जब भी उड़ा है, जिस हाल में भी उड़ा है, इसने जब पंजे लगाए हैं इसने घर ही आगे पंजे लगाए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कबूतर बाहर रह गया हो। क्या बात। ये रात भी बाहर नहीं रहा कभी, और ये 10 साल से मुसलसल उड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास, और इसने बेशुमार हमें जो है ना इनामात इस कबूतर ने दिलाए हैं। इसकी वफादारी जो है हमें, इस वजह से हम 2-3 कबूतर ऐसे हैं जो 10-10 साल से उड़ रहे हैं हमारे पास, तो हमारा तो अब दिल भी नहीं करता कि इनको उड़ाएं, कि इनकी इतनी वफादारी है अपने घर से, इतनी लगाव है, जिस हालत में भी गए हैं सही है नहीं सही है, वापसी इनकी घर में ही हुई है। ये देख लें आपके सामने कबूतर है। अच्छा पार्क खोलें ज़रा। मैं एक बात पूछता हूँ, इसकी भी ना 9वीं इसकी ना बाहर ही है। हाँ जी, 9वीं इसकी भी बाहर ही है, चाहे हल्की सी लेकिन बाहर। और ये भी कितने साल आपके? 10 साल हो गए जब से छत बनाई हुई है। लाएं अगला परिंदा लाएं। इसको देखें जी, ये 10 साल से उड़ रहा है। जी जी, यहाँ का चैंपियन है। मैं जिस्मदीद गाँव मेरे सामने ये कबूतर उड़ा हुआ है। क्या बात है। इसको देखें, ये कहीं से लग रहा है बूढ़ा है नहीं, या कहीं से ये लग रहा है नहीं लग ही नहीं रहा। इसकी 10 साल उम्र है। कोई बंदा ये शो नहीं कर सकता ये कबूतर इतना पुराना है। ठीक है, ऐसे ही अच्छे कबूतर की ये भी पहचान। लो जी, ये
भी एक बात बता दी है ना जो आपको, ये भी याद रखना। अच्छा कबूतर आपको यही रह सकेगा, ये आपको लग रहा है 2 धागे पलटा हो, ऐसे ही है। ठीक है। ये नहीं पिछले लगा। 10 साल से छत के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है ये कबूतर। क्या और बात। मैं खुद इसकी परफॉर्मेंस देखता रहा हूँ उस वक्त आके। क्या बात। इसने 2 मोटरसाइकिलें जिताई हुई हैं इस कबूतर में। तब इसके पर में किंगरी होती थी, इसका नाम किंगरी वाला था। किंगरी वाला था किंगरी वाला। ये इसकी आई का क्लोजअप करके देखें, आपको पता चले इसमें कितने के रिंग हैं और क्या कुछ है। ये इधर ही रखें जरा। लोग तो अपनी नस्लें दिखाते हैं जी, नस्लें देखें, हम कहते हैं इनकी वफादारी देखें आप। वफादारी देखें, ऐसी ऐसी है वफादारी देखें, ये वफादार कितनी है। जी। आप बताएं उस्ताद जी मुझे एक बात, कबूतर आपने अपने पास भी देखे हैं, कहीं और छतों पे भी जा रहे होंगे, उधर भी देखे होंगे, आप क्या चीज़ देख के कबूतर को रखते हो, या कहते हो कि यार ये कबूतर घर आ रहा है, इसमें कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ थी? अब वो ये बात हमने की है तो मैं कह रहा हूँ चलो यही इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस्ताद जी से भी पूछा है, हमने जहाँ से सीखी है, मेरा सफदर पार्टी से तल्लुक। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हमारे साथ ने मैं ये बात नहीं सिखाई गोल्डन टैडी को मगर बंक। क्या बात है, सबसे बड़ी बात की है। ठीक है। उन्होंने कहा जो उड़ के आया वही कबूतर है, वही सिकंदर। कौन सी नस्ल ऐसी है जिसका कबूतर नहीं उड़ता? हर नस्ल का उड़ता है। कौन सी नस्ल ऐसी है जिसका कबूतर नहीं उड़ता? कहते कि ये नस्ल फारग है, इसको अगर फारग कर मैं हाँ उसको ख़त्म कर दिया जैसे ही कह रहे कर दे कि यार ये फलानी नस्ल का कबूतर नहीं उड़ता है, इसको बाहर निकाल। आज तक किसी बंदे ने ऐसा तो नहीं कहा कि फलानी नस्ल उड़ती नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, यहाँ पे देखें आप, मैं ये नहीं कहता कि टैडी कबूतर बुरे हैं, बहुत बिल्कुल, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। रिकॉर्ड है। ठीक है। चौधरी शफी साहब ने उड़ाए हैं, उनकी मुझे बात याद है कि तब लाहौर में कोई कबूतर नहीं बैठा था, उनके कबूतर बैठे। क्या बात है ठीक जी। है। टैडी बहुत गहराई करते हैं, इस बात का हमारा 100% दफात है। लेकिन अगर टैडी ही अच्छे हैं तो फिर सारे निकाल के लोग टैडी रख लें, बाकी खत्म कर दें। हाँ ये भी बात सही है, हर नस्ल उड़ती है, हर नस्ल उड़ती है। ये अच्छी बात की है आपने। लाहौर की तारीख में हर नस्ल उड़ी है। ठीक है। पुराने कबूतर हमने ख़त्म कर दिए। एक मैं आपको यहाँ पे बात कोट कर देता हूँ जो नए शौकीन के लिए बहुत अच्छी है। भाई ये कबूतर का साइज देख लें, ऐसे ही है। अब हमारे दोस्तों ने, नए शौकीनों ने कबूतर छोटे कर लिए। ठीक है। छोटी सी बात है, बड़े से आप छोटा निकाल सकते हैं, छोटे से बड़ा को निकाल सकता है? वो है नहीं निकलता। जबरदस्त बात उस्ताद वाली बहुत बड़ी है जी। कबूतर कोई भी नस्ल का हो, हाँ। उसके हड्डी जोड़ पर उसके पॉइंट पॉइंट पूरे हैं तो वो किसी भी नस्ल का है, वो उड़ेगा। अच्छा मैं एक बात करता हूँ, अब माशाल्लाह आप दोनों बड़ी देर से शौक कर रहे हैं और एक बड़ा एक्सपीरियंस भी आप दोनों का ही। अब मैं एक बात करता हूँ, हम कहते हैं जी कबूतर अच्छा लेके आना, अच्छा लेके आना, अच्छा लेके आना। अगर आपको पॉइंटों का ही नहीं पता होगा कैसे लेके आओगे? खाली ब्लड लाइन से तो नहीं बंदा ला सकता। एक बात ये है, कबूतर दड़ियों में भी पड़े हैं। ठीक है। बात हर बंदे की अपनी नज़र, अपनी पहचान है। हर उस्ताद ने एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं और बता दूँ, हांडी सबकी एक ही है, मसाला भी सबका एक ही है, पकाने के तरीके फ़र्क है, हाथ का टेस्ट है, पकाने के तरीके फ़र्क है। हांडी मसाला सबके पास मौजूद है, पकाने के तरीके फ़र्क है। ठीक है। यही चीज़ कबूतरबाजी की है। कबूतरबाजी में आप ये चीज़ देख लें, नोट कर लें। अच्छा कबूतर जो होगा ना, वो चलता फिरता ही अपने आप को बताएगा मैं अच्छा हूँ। ठीक है। अच्छे कबूतर की सबसे अच्छी चीज़ एक और हमने देखी, वो चलता फिरता आपको बताएगा उसके ये जो शोल्डर होंगे ना, बाही जिस्म के साथ चिपके नहीं होंगे। क्या बात। और जब कबूतर बन जाएगा ना तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही उड़ के दिखा देता है। बनाने के लिए खिलाड़ी चाहिए, बनाने के लिए शौकीन चाहिए। जैसे इसी छत पे बच्चों ने कबूतर उड़ाते हैं, शौक करते हैं, मेहनत इनकी है। बिल्कुल ऐसे आगे भी उस्ताद साहब ने ये बात कही है, मेहनत उनकी है जिन्होंने यहाँ पे दिन रात किया है। ऐसे ही। जब आपने शाम को आके कहना ना आ यार की हो गया, उसको कोई पता नहीं। जी। छतें लोगों ने करोड़ करोड़ रुपया लगा के बनाई हुई है, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं है। हाँ जी। पता उनको ही है जो बेचारे शौक में पुराने हैं, जो कबूतर उड़ा रहे हैं, जिनको पता है नीचे बैठ के। बाकी नस्लें, हर नस्ल का भाई कबूतरबाजी के साथ तल्लुक है। हर नस्ल ने अपने लाहौर में अपनी तारीख बनाई है। आज लोग कहते हैं सियालकोटी नहीं अच्छे, आज लोग कहते हैं ये नहीं अच्छे, मैं कहता हूँ सारे ही अच्छे हैं, सारे ही कोई अच्छे। भी नस्ल बुरी सबसे नहीं। बड़ी मिसाल देख लें, हमारे पास जितने कबूतर आपको दिखाए हैं सारे डिफरेंट कबूतर हैं। डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं आए, सेम नहीं आए, कोई एक नस्ल का कबूतर नहीं आया। आप नहीं आया। आप इतनी छतों पे जाते हैं, इंटरव्यूज किए हैं, बड़े बड़े उस्ताद कराम के इंटरव्यू करते हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। बेशक जी, बेशक, बिल्कुल हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। ठीक है। मुझे आप तारीख में कोई ऐसी छत दिखा दें जिस तारीख में उस छत ने कहा ये मेरा टैडी है, ये 10 साल से उड़ रहा है, नहीं होगा। जहाँ पे आप ऐसे कबूतर देखेंगे, चीने देखेंगे, जौनसरे देखेंगे, फिरोजपुरी देखेंगे, कलसिरे कलदुम्बे देखेंगे, ये कबूतर हर सीजन आपको नजर आएंगे। ये 10 साल से कबूतर उड़ रहा है, मुझे बताएं इसमें क्या ये टैडी है? नहीं। ये 2 मोटरसाइकिलें जिताई हैं, यहाँ का चैंपियन कबूतर ये टैडी है। ये इनके हाथ में कबूतर है, ये देख लें,
वो भी टैडी नहीं है। ये भी देख लें, ठीक है। टैडी जरूर उड़ते हैं, शाम तक बैठते हैं, लेकिन वो कबूतर नापैद हो गए हैं। वो कबूतर आपने दुबई भेज दिए पैसे कमा के, और वो अगर यहाँ से हम लेते हैं तो वो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ऐसी ही आपकी बात है। आप मुझे एक छोटी सी, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जो कि यहाँ पे देनी बड़ी ज़रूरी है। आप 10,000 रुपये का बच्चा लाएंगे ना, उसे मुझे बताएं आप कब छोड़ेंगे, वो छोड़ना ही नहीं है, उसके हमने आगे से बच्चे छोड़ने हैं। ऐसे ही है, ठीक है। और हमारी कोशिश हो रही है, इसमें 10,000 लगा, इसको निकालना ही ना। ऐसे ही है। कबूतर हमेशा तल्लकदारी, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से बनते हैं। क्या हमने बात। यही सीखा है। पैसों से कबूतर नहीं बन सकता। पैसों से कबूतर वही बनेंगे 20 नहीं आए तो 3 ही आए। ठीक है। आप किसी को फ्री कबूतर दे दें, आप उसको हफ्ते बाद पूछेगा यार वो एंजो हो गया, एंजो हो गया, एंजो हो गया। जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा वो आपके फिर रहे हैं। मानी भाई के घर से हमारे पास बच्चे आए हैं, टैडी बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन जो भी बच्चे आए हैं कमाल आए हैं और कमाल उठे हैं। और मानी भाई के पास भी कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इनके पास भी हमने जाना है। इंशाल्लाह। मेरे प्यारे भाई हैं निज़ाम भाई, वो मौजूद नहीं है हमारे पास। उनके यहाँ पे कबूतर उड़े हैं आजम भाई की छत पे ऊपर, रिकॉर्ड रहे हैं बिल्कुल ये सामने मौजूद है, रिकॉर्ड रहे हैं उनको बच्चों के। ठीक है। टैडी नहीं है वो, टैडी नहीं है, हमारा टैडियों से इख्तलाफ नहीं है। ऐसे ही अच्छे टैडी हैं, हम आज भी उन्हें याद रखते हैं कि वो कबूतर बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही, लेकिन वो ऐसे ही। है बहुत कम है, है बहुत कम है। ना पैद है, वो नहीं मिलते। अक्सर कमगर, जौनसरे, टैडी, बांके, बटेरे, वो कबूतर नहीं भाई हम मिलते। बटेरे लाहौर में उड़े हैं, ये उस्ताद हमसे सीनियर बैठे हैं, पूछ लें। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। शाम तक बैठे हैं वो कबूतर। हर नस्ल उड़ती है भाई, लेकिन उसको उड़ाने के लिए नीचे कारीगर की जरूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं करूँगा। अच्छा, अब उड़ाने की आपने बात की है, खाली कबूतर अच्छा होना चाहिए कि जो नीचे उड़ाने वाला बंदा वो भी सही होना चाहिए? मैं आपको देसी मिसाल में बता देता हूँ, सानी जो सबके लिए। घोड़ा अच्छा हो ना, घोड़ा अच्छा हो, उसके ऊपर जोकी माड़ा बैठा हो, वो घोड़ा नहीं जी सकता। ये ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, आवाज़ नहीं आएगी। 2 हाथ मारेंगे तो आवाज़ आएगी। कबूतर अच्छा होना पहली बुनियाद है, कबूतर अच्छा होना। दूसरी बुनियाद है गर्मी में नीचे उस्ताद अच्छा होना। गर्मी में हाथ उड़ते हैं उस्तादों के। घोड़ा हल्का होगा ना, जोकी अच्छा होगा, कबूतर हल्का होगा, उस्ताद अच्छा होगा, वो कबूतर को लड़ाएगा। बताएगा मैंने कबूतर लड़ाया, इलाके में पता चलेगा। इस इलाके में बहुत अच्छे शौकीन और चैंपियन हैं, लेकिन हमने ये देखा कि नहीं भाई को क्या नाम है, ठीक है, ये चीज़ है। हमने ये देखा है कि यहाँ पे ये आजम भाई की छत पे हम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके गुण गाते नहीं तो बाकी सब यहाँ पे कोई अच्छे जो है शौकीन नहीं है। नहीं, इनकी छत पे हमने ये चीज़ देखी है, इनका कबूतर है, इनके ये हाथ में कबूतर मौजूद है। ये कबूतर जितने सीजन उड़ा ना, इसके बाद इस इलाके में कबूतर नहीं उड़ा। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो इनकी है आजम भाई और नाजम भाई की, जो मुझे बहुत पसंद आई, ये कबूतर टाइम शॉट पे कम आ गया, 1.25 घंटे की दूध में नीचे आ गया था। इन्होंने अपना कबूतर कटा दिया था, हालांकि ये विनर थे। क्या बात है यार। उस वक्त मोटरसाइकिल जीत रहे थे, नाम जीत रहे थे। तकरीबन कोई 27 छत्तों के साथ इनकी बाजी थी, सब जीत रहे थे। जेठ की, अस्सू की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी ये बात में मैं गवाह हूँ, मैं मौजूद था। इन्होंने हमसे भी मशवरा किया, और भी उस्ताद मौजूद थे कि उस्ताद जी ये क्या बनता है। हमने कहा ये कबूतर आपका कटता है। इन्होंने कहा जी कबूतर काट दो, बेईमानी नहीं हम करने वाले। इन्होंने कबूतर कटा दिया। आज वो प्लेयर नहीं है, ये इनकी बड़ी शानदार बात है जो मुझे आज भी याद है। क्या बात है। ये विनर कबूतर जो इस इलाके में कोई कबूतर इसके बाद नहीं निकला, वो कटवा दिया था, क्योंकि कबूतर कम आया था, 1.25 घंटे से लेट आया था। अगले दिन फिर ये उड़ाया, अगले दिन फिर ये 5:30 फिर 5:30 ये बैठा, फिर 6 बार बैठा। क्या बात है, ये तो वही आ गई ना, नेकी का सिला नेकी, आपको उसका मिला, अजर मिला। बिल्कुल ऐसे ही देख लें, कबूतर जरा सा इधर उधर होता है, मुंसफ कबूतर काटता है, छत मालक लड़ने लग जाता है। ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारा कबूतर गलत है, काट दो। बिल्कुल सही किया। ये कबूतर इनके हाथ में, आप इसका शौक करें, देखें। अच्छा, मैं शौक भी कराता हूँ। ये भी कबूतर 8-10 साल से, ये लो जी 8-10 साल से उड़ा हुआ कबूतर है। कहीं से कोई नासें इनकी बड़ी, को आंखें लग ही नहीं रही, चीज लग रही है नहीं। ये अच्छे कबूतर की क्वालिटी हो जी। ये भी अच्छा, हम अब पूछेंगे कि गर्मी का शौक ही है, और जिस गर्मी में कबूतर उड़े थे ना, इधर आ जाएं, आप किधर जा रहे हैं? मैं जरा इरफान साहब से अच्छा, इरफान भाई से मैं पूछूंगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी माशाल्लाह, तब आपके ने कबूतर उड़ा के दिखाए, बहुत अच्छे उड़े, ठीक है। और आप मुझे अब ये, मैं बेसिक आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप क्या कहते हैं,
उस गर्मी में कबूतर उड़ाना आसानी होती है कि जहाँ पे मौसम ठंडा होता है वहाँ पे होती है? मौसम जितना टेम्परेचर होगा ना, हाँ, अच्छा टेम्परेचर से मुराद यही है कि 45 हम 40 के ऊपर की बात ही, हाँ जी 40 से नीचे तो हमने बात ही नहीं करनी ना। 40 से ऊपर टेम्परेचर हो, परिंदे आपके पास बने हो, मेहनत आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा मज़े कबूतर में है ही नहीं। कबूतरबाजी में सबसे अच्छी कबूतरबाजी यही है, टेम्परेचर हो, आपके अच्छे परिंदे बने हो, आपको पता होता है कि यार ये आज मेरे रात रहने वाली बात नहीं होती। और मेरे ख्याल में 2022 में हमने भी रात नहीं देखी। ज़बरदस्त, झूठी बात थी कि लोग ऐसी बड़े बिल्कुल सही कह अच्छे रहे चैंपियन उस्ताद हैं, उनके रात बैठते भी होंगे, लेकिन हमारे इधर अपने एरिया में हैं। जी जी, ये नहीं थी सिचुएशन, ये नहीं थे कि वो कि जितनी ज़्यादा 40 से नीचे टेम्परेचर होगा ना, अब किसी भी कबूतर को उड़ा ले वो उड़ता है। ज़बरदस्त, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा और सबसे ज़्यादा मज़ा यही है बाजी में है, डक डार की बाजी हो और आप कबूतरों के साथ कबूतर बने हो, क्या बात, मज़ा ही वही है। यानी कि अगर जी 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 उड़ना है ना, हफ्ते बाद जिस कबूतर ने उड़ना है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत टाइम है। मज़ा तो वो ये है ना कि आज कबूतर उड़ा है, मुझे पता है यार ये आज कबूतर मेरा बैठ गया, मेरे पास अगला दिन है, इसमें मैंने इसको सेटिंग कर दी है और अगली बाजी में ये कबूतर अच्छा उड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उड़े भी हैं, जेठ में भी। बिल्कुल, वही इसीलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। इकबाल भट्टी साहब, जी जी, उनकी छत से हम पहली 4 बाजियाँ लूज कर गए। अच्छा, 3 घरों से हमारी बाजी थी ज़बरदस्त, 2021 में। और वो जेठ ऐसा था कि अपना प्रॉपर टाइम पे जेठ आया था, जिसमें 42, 43, 44 तक 45 तक भी टेम्परेचर उस जेठ में 45, 40 जा रहा था। क्या और बात उस दिन मैं सिर्फ ये था कि संभाल से ये पता लग गया था कि यार जो लोग ये कहते हैं ना कि ये जेठ में कबूतर जो बंद नहीं गया उसने नहीं उड़ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर उड़े। क्या बात, सामने रह के अच्छा, कबूतर उड़े। थोड़ा सा अगर आप कोई बताना चाहें संभाल के बारे में कि जेठ में जो आप संभाल करते थे वो क्या चीज़ थी? संभाल में ये है कि आपका जब कबूतर उड़ के आए ना, जेठ में खास तौर पे कबूतर आपका उड़ के आए ना, सादे पानी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लो जी, जिसने पानी पूरा कर लिया सादे पानी से, बगैर मैं बात काट रहा हूँ आपकी। लो दोस्तों, एक बात जो बता दी है ना, ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जिस बंदे ने कबूतर का पानी पूरा कर लिया ना, समझ ले वो कबूतर दोबारा भी उड़ेगा। आप आगे बताएं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो कबूतर उड़ रहे हैं ना, किसी भी दिन कबूतर वैसाख में उड़ रहे हैं, असू में उड़ रहे हैं, जेठ में उड़ रहे हैं, ये आपको हर कबूतर आके खुद बताता है कि मेरे साथ क्या करना चाहिए। आप सारे कबूतरों को एक ही जैसा हाथ आप नहीं रख सकते हैं, वो कबूतर आपको खुद सिखाता है कि मेरी हालत ये है, मैं इस कंडीशन में हूँ, मेरे साथ अब आपने क्या करना है, मेरी जो हालत है उसके मुताबिक करो। ये ना वो मांग पानी रहा और हम उसको दे खुराक रहे हों, वो मांग खुराक रहा है हम उसको दे पानी रहे हों, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कबूतर के मुताबिक जो है उसको संभाला जाए, जो वो मांग रहा है, जो वो चाह रहा है, उसको वो चीज़ दी वो जाए, चीज़ तो दी उसको जाए। फायदा देगी। अच्छा, आप बता थे पानी का। मैं पानी का ये बता रहा था कि कोई भी शौकीन हज़रात हैं, कोई भी मौसम है, सब भाइयों के लिए सबसे अच्छी टिप ये है, पहले तो कबूतर का पानी पूरा करवाएं और कबूतर को खुराक तब तक ना दें जब तक वो अपना पानी हजम ना कर दे। जब आप देख लें कि इस कबूतर ने मेरे ने टीके लगा के पानी भी पी लिया, सारा कुछ कर लिया और बिल्कुल उसने एक साथ लगा लिया, खुराक तो वो खुद मांगेगा। उसके बाद आपने उसको खुराक दे दिया। और जिसने गलती की नहीं किसी भी मौसम में, पानी बोटे में है और आपने खुराक दे दी, कबूतर गया, कबूतर आपका खत्म हो गया, पूरा सीजन आपने जाया कर दिया और उस सीजन से आपने सीखा भी कुछ नहीं। क्या बात अब है। जिक्र कर रहे थे अलमरहूम जनाब नईम साहब, जी जी जी, जो कि हमारे पास नहीं है, दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके जी। भाई आए हैं जी उस्ताद मलिक सलीम साहब। ले जी, उस्ताद मलिक सलीम साहब। तो ये जी यहाँ के इलाके के चैंपियन है। आजे सब साथ आ जाए एक सेकंड के लिए ना। ये हमारे वाल्टन के जी चैंपियन है और माशाल्लाह लाहौर लेवल की लाख वाली एंट्री में भी उठते हैं और जितने भी लाहौर लेवल के कप हैं, 10 कप हैं, 12 कप हैं, तमाम कपों में ये उठते हैं। जबरदस्त, तमाम कपों में ये पोजीशन होल्डर है। क्या बात है। और कोई भी ऐसा कप नहीं है जिसमें ये पोजीशन होल्डर ना हुए हों किसी भी सीजन में। जबरदस्त जी, ये जबरदस्त। अरसा दराज से शौक कर रहे हैं, नईम भाई की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बेशक लेकिन जी। इनके भाई सलीम साहब ने कबूतरबाजी में उनका नाम आज भी जिंदा रखा हुआ जी, है जी। और माशाल्लाह उसी तरह के रिजल्ट ये दे रहे हैं। और लाहौर की तगड़ी छतें, जितनी भी तगड़ी दफ़े हैं, सबके साथ इनका शौक होता है और शौकीन बड़े अच्छे हैं, साफ़ सुथरे, मज़ेदार
और कभी भी आज तक हमने अलमरहूम नईम साहब और उस्ताद मलक नईम सलीम साहब सीमेंट वाले की छत का तकरीबन 32 साल से मेरा शौक से तल्लुक है। मैंने कभी छत का ना रोना सुना और ना ही कभी ये बात सुनी है कि छत का किसी के साथ कोई लेन देन या कबूतरबाजी में कोई इशू आया। और अच्छे शौकीन का होता भी नहीं है, जबरदस्त, बहुत ही अच्छे लाहौर लेवल के शौकीन उड़े हैं। पिछले सीजन माशाल्लाह इनकी 12-15 पोजीशनें थी, उससे पीछे भी इनकी माशाल्लाह को 18-20 2022 में माशाल्लाह हमने सलीम भाई की छत से 48 का क्या बात है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पोजीशन, हमने किए थे। क्या बात है। 33 के 34 कप मैंने अपनी छत से विन किए थे। क्या बात है जी, इन्होंने रिकॉर्ड लगाए हुए हैं माशाल्लाह। जितने बंदे जाते रहे हैं ना, सारे कप हमने उनमें सर्व किए। और क्या क्या बात, कप हमें चाहिए, हमने कहा सारे ले जाओ। क्या एक बात। कप भी हमने अपने घर में नहीं रखा। और ये सलीम साहब का रिकॉर्ड है जी, ये मैंने जो आपको स्पेशल आपकी मेहरबानी आप तशरीफ लाए हैं हमारे पास। नहीं हमारी अपनी छत है, ये कोई मसला नहीं है। आपके पास सामने खड़े हैं, मुझे निकाल के ये इरफान साहब हैं, आजम भाई, नाजम भाई भी, उस्ताद भी बैठे हुए हैं और ये सलीम साहब, ये जी यहाँ के रिकॉर्ड होल्डर कबूतरबाज हैं और मंजरे आम पे आने से जरा कतराते हैं क्योंकि इनके काम वैसे हैं। ये कहते हैं यार ये टाइम निकालना पड़ता है स्पेशल दिन। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिजनेसमैन बंदे हैं तो, लेकिन आज इनकी खसूसी रिक्वेस्ट पे, मेरी रिक्वेस्ट पे ये सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। जबरदस्त। इंशाल्लाह ये इनसे टाइम भी लेंगे और इनके परिंदों का तमाम का इरफान साहब का, सलीम साहब जो है, कुछ 1-2 भाई हैं वो भी मसरूफियात की टाइम नहीं निकला, नहीं आ सके, तो उनकी छत पे भी हम जाएंगे और शौक कराएंगे। और ये खड़े हैं, इनसे पूछ लें, अरसा दराज से शौक कर रहे हैं, डैडी नहीं उनके उड़ते, पूछ लें हर एक। नहीं हम पूछेंगे कबूतर इनके उड़ते हैं और ये अब आपको खुद बताएंगे जिनके कौन से कबूतर उड़ते हैं। सलीम साहब आप खुद इनसे मुखातिब जी। साजी सबसे पहले तो अच्छा जी आप बता रहे हैं। हमारे सरपंच, ये कमांडो ग्रुप के हमारे सदर ये क्या बात है जी, कमांडो ग्रुप के सदर हैं। ले जी आगे हम बात कर रहे थे जी, उनके सदर भी आ गए हैं। बताएंगे कि आप माशाल्लाह कब से शौक हो रहा है, क्या तरीकाकार और कौन सी पार्टी से आपका तल्लुक है। हाँ जी जरा। अस्सलाम वालेकुम साजी, सबसे पहले तो अजान हो रही, अजान के बाद